ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे महेश्वरी। मंगलं दिशतु मे सदाशिवा। परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च हाजरियां लवाउंदे हुए सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। बहुत ही सुभाग समा समुची नामधारी साध संगत दे वास्ते बहुत ही खुशियां ते भागां भरिया अज दिन है। देश विदेश जिथे भी कोई सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की मर्यादा इस नामधारी संप्रदाय का अनुयायी है, वो अज दे इस दिन नूं बहुत उत्साह दे नाल बड़े चाह दे नाल मना रहा है, क्योंकि हाजरा हजूर सतगुरु जी का अज 57वां 57th प्रकाश पुरब है साध संगत। और अपनी ये एकत्रता उसे सतगुरु की सिफत करन दे वास्ते ते सतगुरां तो प्राप्त किया होया नाम जो आप जप रहे हो, इस दिन नूं सफल करते हुए सतगुरां दे प्रति सिक्खी दे प्रति अपना प्रेम विश्वास
ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਟਿਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਔਰ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਗੂਕਾਰਸ ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਆਤ, ਰੂਕਾਰਸ ਤਨ ਨਿਰੋਧਕਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਨਿਰੋਧਿਤਵਾਤ ਗੁਰੂ ਰਿਤਿਆ ਵਿਧੀਯਤੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਝਲਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂਕਾਰਸ ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਆਤ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗਾ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਗੂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਵਾਸਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਤਾ ਜੋ ਚੱਕਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਗੂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ, ਵਰਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਕਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਉਤਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਔਰ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ, ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
जो प्रकाश का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है, जो दया क्षमा धर्म दान का स्वरूप है, उदा नाम है गुरु। अगर गुरु नू प्राप्त करके व्यक्ति दे हिरदे च ज्ञान नहीं आया, अगर गुरु नू प्राप्त करके व्यक्ति दे हिरदे च प्रकाश नहीं बनिया, अगर गुरु नू प्राप्त करके व्यक्ति दे अंदर आनंद नहीं आया, अगर गुरु नू प्राप्त करके व्यक्ति दे अंदर दया धर्म सत संतोख नहीं आए, क्षमा रखना हजे गुरु सानू मिलिया नहीं गा साध संगत च। क्योंकि दुनिया दा इको ही एक ऐसा रिश्ता है जिथों ज्ञान मिलता है, जिथों प्रकाश मिलता है, जिथों आनंद मिलता है, जिथों दया धर्म संतोख दी प्रेरणा मिलती है, उदा नाम है गुरु। साहब गुरु नानक सच्चे पातशाह मूल मंत्र दे विच उस परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा दा लक्षण दसदे ने। वो परमात्मा किस तरह दा है? एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। इत्थे तक उस परमात्मा दा लक्षण दस्या। वो परमात्मा एक है, वो परमात्मा सत स्वरूप है, वो परमात्मा निरंकार है, वो परमात्मा निरभौ ते निर्वैर है। पर इहो जे परमात्मा दी प्राप्ति होए किस तरह? गुर प्रसादे। गुरु नानक पातशाह दा फरमान है मूल मंत्र दे विच, अगर किसे नू भी परमात्मा दी प्राप्ति हुई है, अगर किसे ने भी अपने अंदर उस परमात्मा दा साक्षात्कार कीता है, अगर किसे ने भी अपनी इस आत्मा नू परमात्मा दे विच लीन कीता है, अगर किसे ने भी मुक्ति दी प्राप्ति कीती है ते सतगुरु दी कृपा द्वारा कीती है, सतगुरु दे प्रसाद द्वारा कीती है। साध संगत जिन्ना सतगुर पुरख न भेटियो से भागहीन वसकाल, ओए फिर जोन पवाई है विच विष्टा कर विकराल। दे वाक अनुसार गुरु पंचम पातशाह फैसला करते ने। मैं कोई सांप्रदायिक सट नहीं मारनी। कुछ लोग ये कहते ने गुरु देहधारी नहीं गा। मैं ज़्यादा इस टॉपिक ते नहीं जाना क्योंकि ये विषय नहीं छेड़न दा। पर गुरु अर्जन पातशाह दे एक शब्द वाल मैं आप दा ध्यान दवावां, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटियो। गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने जिन्ना सतगुर भेटियो नहीं लिखिया, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटियो। पुरख शब्द का प्रयोग पंचम पातशाह ने किया। साध संगत पुरख तो भाव व्यक्ति देहधारी। जिन्ना सतगुर पुरख न भेटियो से भागहीन वसकाल। कहते ने जिन्हों ने देहधारी सतगुरु की प्राप्ति नहीं की, वो भागहीन। गुरु पंचम पातशाह के शब्द ने भागहीन वसकाल। उते कदे भी इस जन्म मरण के चक्कर तो मुक्त नहीं हो सकते। साध संगत ओए फिर जोन पवाई है विच विष्टा कर विकराल। बड़े कठोर जे शब्द गुरु साहिबा ने वरते ने। कहंदे उते बार बार जन्मेगा ते विष्टा दा कीड़ा बनेगा। साध संगत विष्टा दा कीड़ा। जिन्ना सतगुर पुरख न भेटियो, जिन्ना ने देहधारी सतगुरु की प्राप्ति नहीं की। साध संगत मैं 2 मिनट दे उत्ते आपदे सामने कुछ गंभीर जी विचार एक रखन लगा। सुभाविक रूप दे विच ये जो मन है, इहदे अगे कुछ आइडियल व्यक्तित्व चाहिए। साध संगत स्वाभाविक रूप दे विच जो मन का झुकाव है
वो संसार दे प्रति है। और सानू इस गल दा विश्वास भी नहीं, चाहे गुरबाणी बहुत कहती है कि संसार दुख दा घर है, संसार दे संबंध दुख दे घर ने, संसार चो किसी ने कदे स्थाई सुख दी प्राप्ति नहीं कीती। गुरबाणी बहुत बार कहती है और बहुत बार सुनिया, पर फिर भी साडे मन दे अंदर वो विश्वास नहीं बनता, फिर भी व्यक्ति नूं ये भरोसा नहीं बनता कि संसार दे विचों सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता। साध संगत च मन नूं विश्वास नहीं आउंदा। बहुत बार सुनदा है, जिंदगी दे विच बहुत ठोकरां खांदा है, बड़े धोखे मिलदे ने इन्हां संबंधां दे संसार दे विचों, होर भी बड़े प्रकार दे उतार चढ़ाव व्यक्ति वेखदा है, पर उदा असर बहुत थोड़ी देर तक हुंदा है। व्यक्ति दा जो पूर्ण विश्वास है वो यही है, सुख संसार दे विच है। पर कोई जिन्ना चिर व्यक्ति इस संसार तो उपराम हो के उस परमात्मा दी भगती दे विच लीन रहिंदा है, इन्हां काम क्रोध लोभ मोह विषय विकारां दा त्याग करदा है, सारियां दे नाल निस्वार्थ प्यार करदा है, सारियां दा भला सोचदा है, जदों कोई इहो जी मूरत साडे सामने आउंदी है और असी इहो जी मूरत नूं वेखदे हां, साडा मन अट्रैक्ट हुंदा है। वस्तुता जो जिंदगी दे विच गुरु दा काम है, साधना व्यक्ति ने आप करनी है। किरपा बख्शिश जरूर बनती है, पर किरपा बख्शिश दा पात्र बनना पैंदा। साध संगत च मुक्ति सतगुरां दी किरपा, सतगुरां दा प्रसाद, बख्शिश बिना पात्रता तो नहीं मिलती। साध संगत च अगर इस तरह मुक्ति मिलन लग जावे, सतगुरां दी बख्शिश होण लग जावे, खिमा रखना सतगुरु सारियां वास्ते बराबर है। सतगुरु दा किसे नाल कोई वैर विरोध नहीं गा। अगर सतगुरु किसे दी पात्रता ते योग्यता तो बिना, क्वालिटी तो बिना किसे ते किरपा करदे ने, ते सतगुरां दे उत्ते भी फिर दुनियावी लोकां दी तरह पक्षपात दा दोष आ जाएगा। साध संगत जी, जिस तरह असी अपने रिश्तेदार नूं फायदा दिवाउण दे वास्ते, असी अपने मित्र संबंधियां नूं कोई काम दिवाउण दे वास्ते दूसरे किसे नूं पिछे कर दिंदे आ, चाहे उहदे कोलों क्वालिटी है, इहदा नाम है पक्षपात। अगर सतगुरु बिना किरपा तो, अगर सतगुरु बिना क्वालिटी तो, गुणा तो किसे ते बख्शिश करदा है, किरपा करदा है, सतगुरु भी फिर पक्षपाती है। साध संगत जी, पक्षपाती। पर सतगुरु सारियां दे वास्ते एक है, सतगुरु सारियां दा भला मनाउण वाला है, सतगुरु सारियां दी कल्याण करन वाला है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते ने, ओही निर्गुण निराकार परमात्मा दा सरगुण स्वरूप जदों इस पृथ्वी दे उत्ते आउंदा, सारियां दा भला करन दे वास्ते ही आउंदा। साध संगत जी, सतगुरु दा मतलब की है? एक ऐसी मूरत साडे सामने है, एक ऐसी एग्जाम्पल साडे सामने है जिन्नू वेख के साडा मन इस संसार तो उपराम होवे, जिन्नू वेख के साडे अंदर दया धर्म सत संतोख आदि जो शुभ गुण ने, जिन्हां दी प्राप्ति उस परमात्मा नू कराउण वाली है। जिस तरह मैं थोड़ा जिहा होर इस पासे जावां, साहब कहंदे ने एक ओंकार, ओ परमात्मा एक है। एक तो भाव इस सारे जगत दे अंदर रमिया होया। कि साडे अंदर ये फीलिंग है? कोई एक ऐसा व्यापक तत्व साडी दृष्टि दे विच आउंदा है, साडे विचार दे विच आउंदा है कि कोई एक ऐसी सत्ता है जिहड़ी सब जगह मौजूद है।
अगर इस प्रकार की सत्ता का किसी दिन सानू एहसास होने लग जाएगा, उस दिन व्यक्ति पाप कर्म नहीं कर सकता। साध संगत जी, इस तरह दियां बहुत सारियां कथा मिलदियां ने इतिहास दे विच। एक गुरु ने शिष्य की परख करने दे वास्ते दो उन्हां दे प्रिय शिष्य सन, उन्हां दी परख करने दे वास्ते कुछ फल दिते। आख्या इहो जी जगह जाके छकने जिथे तुहानू कोई वेखदा ना होवे। और व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। साध संगत जी, व्यक्ति बहुत चलाक है। और ये मार्ग इस तरह का है, बुद्धि दी कुशलता, हुशियारी, चलाकी व्यक्ति नू कुछ दूर तक ले जा सकती है, पर आखिरकार ये सारा समर्पण जिन्ना चिर व्यक्ति नहीं करता। अगर मैं इनू दूसरे शब्दां दे नाल कह दवां, जिन्ना चिर व्यक्ति नू अपनी बुद्धि ते विश्वास है, जिन्ना चिर व्यक्ति नू अपनी चलाकी दा अभिमान है, जिन्ना चिर व्यक्ति बड़ा चतुर बनेगा, उन्ना चिर परमात्मा नू प्राप्त नहीं कर सकता। सासंग नहीं कर सकता। व्यक्ति दी अपनी चलाकी, व्यक्ति दी अपनी हुशियारी इनू सदगुरु तो परमात्मा तो दूर ले जाती है। ये ते समर्पण दे सौदे ने, ये ते परमात्मा दी हर समय उपस्थिति दे विच रहन दे सौदे ने। ये ते हमेशा परमात्मा नू सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मनन दे मार्ग ने। अपनी चलाकी ते हुशियारी दे नाल उस परमात्मा नू प्राप्त नहीं किया जा सकता। सासंग नहीं किया जा सकता। एक ने बड़ी बुद्धि लगाई, बड़ी चलाकी दे नाल एक कमरे दे अंदर वड़ के अंदरों कुंडी लगा ली, चारों तरफ वेख्या कोई खिड़की दरवाजा खुला ते नहीं रह गया, उथे उस फल नू छकिया। साध संगत जी, और एक दूसरा जिस दृष्टि भी जिधर भी जाता है, जिथे भी जाता है, मनुख भावें नहीं, जीव जंतु भावें नहीं दिखते, पर उहदी दृष्टि है कि परमात्मा सर्व व्यापक है। साध संगत जी, वो परमात्मा मैनू सब जगह वेखदा पिया है, वो किते भी फल नू छक ना सकिया। साध संगत जी, गुरु दे कोल वापस आया, आके कहंदा गुरुदेव मैनू दुनिया दे इत्ते ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिलिया जिथे मैं इस फल नू छक सका, क्योंकि परमात्मा हर जगह मौजूद है। और शिष्य नू गुरु ने गलवकड़ी दे विच ले लिया और आख्या जे तेरी दृष्टि इथों तक चली गई है, फिर हुण मुक्ति तेरे हाथ दे विच है। साध संगत जी, जन्म मरण दा चक्कर तेरा कटिया गया। एक ओंकार दा मतलब की है, वो परमात्मा सर्वव्यापक है। व्यक्ति दे अंदर ये दृष्टि आनी चाहिए है। अगर मैं ये कह दवां गुरबाणी पढ़न दा, सिमरन करन दा, अथवा होर जिन्ने भी धार्मिक अनुष्ठान असी करते हैं, इस सारे करन दा मतलब की है? व्यक्ति दी दृष्टि व्यापक हो जावे, व्यक्ति नू वो परमात्मा सब जगह सारियां दे अंदर दिखन लग जावे। भाई कन्हैये ने आनंदपुर साहब दे युद्ध दे विच जदों दुश्मनां नू भी जल पिया दिता मुसलमानां नू, और सिंघां ने जाके शिकायत की, सच्चे पातशाह असी ते इन्नी मेहनत मशक्कत करके मुसलमानां नू मारदे आ, घायल करदे आ, ये भाई कन्हैया उन्हां नू फिर जल छका के जीवित कर दिंदा है, उन्हां दे अंदर फिर जान फूक दिंदा है, वो जल छक के फिर युद्ध करन लई तैयार हो जांदे ने। भाई कन्हैये नू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने बुलाया, कहंदे ने भाई कन्हैया गल ठीक है? कहंदा महाराज ठीक है, पर मैनू सारियां दे अंदर आप दा ही स्वरूप दिखदा है, मेरे लिए कोई दुश्मन कोई अपना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने गलवकड़ी दे विच ले लिया,
दृष्टि इत्थों तक पहुँचनी चाहिए है। अगर अपनी साधना का मापदंड वेखना होवे, मेरा सिमरन कीता सफल है कि नहीं, मेरी गुरबाणी कीती थाए पैंदी है कि नहीं पैंदी पई, मैं सतगुरु धारण कीता है इहदा कोई मतलब मेरी जिंदगी च उतरिया कि नहीं उतरिया, इहदा थर्मामीटर की है, इनू नापिया किस तरह जावे, अपनी दृष्टि वेखी जावे। मैनू सारिਆਂ दे अंदर वो परमात्मा दिखदा पिया, सब जगह उस परमात्मा दी सत्ता है। संसार दा एक कण भी ओदी शक्ति और समर्था तो अधूरा नहीं, हर जगह ओदी उपस्थिति है, प्रेजेंस है ओदी। इस चीज़ का एहसास अगर साडे अंदर होना शुरू हो जावे, समझ लेना मेरा सिमरन कीता, मेरी बाणी पढ़ी, मेरा गुरु नूं धारण कीता, सफल है, साध संगत सफल है। एक ओंकार सत्य नाम व्यक्ति की जिंदगी च सत उतर आवे। मैं ये गल इस करके सुना रहा आपनू, जो परमात्मा सत स्वरूप है वो असत व्यक्ति नू किस तरह मिल सकता है। जिस तरह सजातीय पदार्थ ही आपस दे विच मिलदे ने, जल दे अंदर जल नू मिलाओ वो एक मिक हो जाएगा, तेल दे अंदर तेल नू पा दिओ वो एक मिक हो जाणगे, पर जल दे अंदर अगर कोई पत्थर सुटिया जावे वो जल दे नालों अलग दिखेगा, अलग दिखेगा, क्योंकि सजातीय पदार्थ ही एक होया करदे ने। इसे प्रकार परमात्मा सत स्वरूप है, ते अगर साडी जिंदगी दे विच असत है, साडे वेखन च असत है, झूठ है, साडे बोलन च झूठ है, साडे करन च झूठ है, वो परमात्मा किस तरह प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरु साहब कहते ने, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जे दोनों ज्योतियां विपरीत ने, जे दोनों जल दियां धारावां विपरीत ने, किस तरह मिल सकदियां ने? जिंदगी का आचरण असतात्मक है और परमात्मा सत स्वरूप है, वो परमात्मा किस तरह मिल सकता है? नहीं मिल सकता। गुण लक्षण दसन का मतलब यह है, सत्य नाम करता पुरख, वो परमात्मा सारी सृष्टि नू करने वाला है। चाहे ये जीव सृष्टि नू कर ते नहीं सकता, क्रिएशन परमात्मा दी है, बहुत छोटी जी क्रिएशन इस जीव दे हिस्से आई है, पर वो परमात्मा सच स्वरूप है, न्यायकारी है, वो किसी दे नाल अन्याय नहीं करता। जिस तरह दे किसी दे कर्म ने उसी प्रकार दा वो सब नू फल देंदा है। इस गल दे विच विश्वास, इस गल दे विच श्रद्धा साडी है कि नहीं? उस परमात्मा दा जो ये विशाल संसार रूपी कर्म है, इहदे प्रति कोई साडी जिम्मेदारी बनदी है कि नहीं बनदी? इन्वायरमेंट नू साफ रखना, जो जल दे स्रोत ने उन्हां नू साफ रखना, वनस्पति नू साफ रखना, ये व्यक्ति का दायित्व है। केवल हर चीज नू नोचन दी ये जो एक मानवीय प्रवृत्ति है कि इस पृथ्वी चो जो अज पंजाब दे विच वेखदे हां, किसान ज़्यादा तो ज़्यादा अनाज लैण दे वास्ते दवाइयां दा इस्तेमाल करते ने और पृथ्वी दे धरती दे अंदर जो पैदा करने दी शक्ति है वो नष्ट हो रही है, सासन खत्म हो रही है। करता पुरख वो परमात्मा ने सृष्टि जो बनाई है उसका संरक्षण करना, उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करनी, ये साडा फर्ज है। अगर ये गुण साडे अंदर नहीं, परमात्मा नहीं मिल सकता। अगर मैं इन्हूं दूसरे शब्दां नाल कह दवां, जिहड़ा व्यक्ति नेचर नाल प्यार नहीं करता वो परमात्मा नाल कदे भी प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिहदा हिरदे एक गुलाब जां किसी भी फुल नूं वेख के नहीं खिड़दा, जिहदा हिरदे इस आसमान नूं वेख के नहीं खिड़दा, जिहदा हिरदे इस जल दे स्रोत नूं वेख के नहीं खिड़दा, वो परमात्मा नूं नहीं वेख सकदा, सास नहीं वेख सकता। करता पुरख
ਨਿਰਭਉ परमात्मा ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਉ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਉ परमात्मा ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। श्रीमद् भगवद गीता दे विच अभयम सत्तु समशुद्धिर जो साधक दे लक्षण दसे ने भगवान श्री कृष्ण ने पहला ही आख्या अभयम निरभय होके जीवन जिउण दी चेष्टा कर। हमेशा डरदा क्यों रहना है? कोई नियंत्रण करने वाली सत्ता परमात्मा इस संसार दे विच मौजूद है। निरभउ और निर्वैर जिहड़ा निर्वैर स्वरूप परमात्मा है साडे दिलां दे अंदर ते वैर भरे पए ने, साडे दिलां दे अंदर ते ईर्खा भरी पई है। असी दूसरे दे नाल की अपने खून दे रिश्ते जिन्हां दे नाल ने उन्हां दे प्रति साडे अंदर बड़ा वैर ते विरोध है। असी किसे नूं ते वेख सकदे हां, अपने संबंधियां नूं असी नहीं वेख सकते। इन्ना वैर साडे अंदर भर चुकिया है। फिर देश नूं लैके इंडिया ने पाकिस्तानी किन्नी तरह दी साडे अंदर वैर दी भावना है। जिहड़ा निर्वैर स्वरूप परमात्मा है वो किसी वैर करने वाले बंदे नूं मिल सकदा है? नहीं मिल सकदा, नहीं मिल सकता। सतगुरु दा मतलब की है? गुर प्रसादे। गुरु दे प्रसाद दा मतलब की है? सतगुरु दा मतलब की है? एक ऐसी मूर्ति साडे सामने, एक ऐसी एग्जाम्पल साडे सामने वो पेश करदे ने जिहदे अंदर निरभउ निर्वैर एक ओंकार सत्य नाम उस निर्गुण निराकार परमात्मा दे जो गुण ने वो एक मूर्ति दे अंदर जदों सानू दिखदे ने, एक व्यक्ति दे क्षमा करना शब्दां दा प्रयोग करना पैंदा, एक मूर्ति दे अंदर जदों दिखदे ने, एक व्यक्ति दे अंदर जदों वेखदे ने, एक देहधारी शरीर दे अंदर जदों वेखदे ने, व्यक्ति दा मन उन्हां गुणां दे वल खिच्चिया जांदा। साध संगत जी, अगर सतगुरु इस संसार दे उत्ते नहीं आउंदे और उस परमात्मा दे जो दैवी गुणां नूं धारण करके कोई शरीर वाला व्यक्ति सानू नहीं विखाउंदा, शायद परमात्मा दे वल कोई भी नहीं लगदा। साध संगत जी, नहीं लगदा। पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास कोई, भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरबाणी दा फरमान है। सतगुरु का मतलब है इहो जे शुभ गुणां नूं धारण करके व्यक्ति दे सामने एक एग्जाम्पल पेश की जावे और व्यक्ति का मन उहदे वल लग जावे। साध संगत जी, भाई लहणा जी एक साधारण जीवन है, भावें जिंदगी दे विच कर्म कांड है ने, देवी नूं मनदे ने, देवी दी उपासना करदे ने, हर साल उन्हां दा दर्शन करन वास्ते जांदे ने, पर जिन्ना चिर पूर्ण गुरु की प्राप्ति व्यक्ति नूं नहीं हुंदी, खिमा रखना व्यक्ति का सारा कीता होया कर्म धर्म निष्फल हो जाता। साध संगत जी, और जदों व्यक्ति का धर्म कर्म फलन लगता है उदा पहला मतलब ही है कि व्यक्ति नूं गुरु मिल जाता। साध संगत जी, जन्म जन्मांतरां दी साधना तो बाद, जन्म जन्मांतरां दे पुण्य इकट्ठे होने तो बाद व्यक्ति नूं किसी सतगुरु दी प्राप्ति हुंदी है। साध संगत जी, मैं ये सोचदा भाई लहणा जी जो देवी दी उपासना इन्नी निष्ठा दे नाल, इन्नी श्रद्धा सत्कार ते प्रेम दे नाल करदे सन, भाई लहणा नूं गुरु नानक साहिब दी प्राप्ति हुई। साध संगत जी, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने 19 वार गंगा जी की यात्रा करदे कीती। साध संगत जी, 20वीं वार जदों गए रस्ते दे विच मेरे पिंड दिमाग चों निकल गया, एक दुर्गा पंडित है, उन्हें इहो जी धर्मशाला घर दे विच बनाई है। गंगा दी यात्रा करन दे वास्ते जेड़े श्रद्धालु जांदे ने, आवाजाई दे उस समय साधन नहीं सन, वो भाई पंडित दुर्गा जी दे घर रह के आराम करते सन, जल पानी छकते सन और फिर अपनी अगों यात्रा करते सन।
गुरु अमरदास सच्चे पातशाह भी उस दुर्गा पंडित दे कोल ठहरे और वो ज्योतिषी सी। जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बिराजे ने, उन्होंने उहदे पैर, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे चरण वेखे और उन्हां चरनां दे विच पदम है। साध संगत जी, पदम ज्योतिष विद्या दे हिसाब दे नाल जिहदे चरनां दे विच पदम होवे, जां ते वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा कोई महान गुरु बनेगा। साध संगत जी, सतगुरु दी पदवी नूं प्राप्त करेगा। जदों दुर्गा पंडित ने उस पदम नूं वेखिया और उन्हें आख्या कोई महान शख्सियत है। अगले दिन जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जान लगे, कुछ भेटा देन लगे और उस दुर्गा पंडित ने लई नहीं। साध संगत जी, कहंदा मेरी ज्योतिष विद्या दे हिसाब दे नाल आप जां ते चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और जां फिर महान सदगुरु बनोगे। ये जो दक्षिणा है मैं उस समय तुहाडे कोलों लवांगा। और गुरु अमरदास सच्चे पातशाह अपने जीवन वाल वेख के हैरान हो गए कि धन भी बहुत नहीं उन्हां दे कोल, हजे मन नूं भी शांति नहीं, और चक्रवर्ती सम्राट और महान सदगुरु बनन दी भविखबाणी हुंदी है पई। मैं सिर्फ ये गल आपदे सामने एक चित्र पेश करना चाहुंदा वां कि व्यक्ति भावें किन्ने भी धर्म कर्म करदा है, व्यक्ति भावें किन्ना भी चंगा आचरण रखदा है, जिहड़े कम्युनिस्ट लोग ने वो बहुत सच बोलते ने। इथों दे भी जो अंग्रेज लोग ने बहुत सच बोलते ने, सच नूं बहुत प्यार करते ने, नेचर नूं बहुत प्यार करते ने। किसी नूं कोई तकलीफ ना होवे अपना बिहेव इस तरह का बना के रखते ने। जे तुसीं वेखोगे धार्मिक लोकां दे नालों भी कम्युनिस्ट ते अंग्रेज लोग बहुत चंगे ने, बिल्कुल चंगे ने, बिहेव बहुत वधिया है। पर शास्त्र और गुरबाणी जिन्हें आध्यात्मिक यात्रा करनी है, जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति करनी है, जिन्हें अपने अज्ञान का नाश करना है, उन्होंने किसी ना किसी गुरु नूं धारण करना पएगा। इहो जिहा आचरण होण तो बाद भी जिन्ना चिर जीवन च सतगुरु की प्राप्ति नहीं आउंदी, उन्ना चिर मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं गी। साध संगत नहीं की चरना च पदम है और 20 वारी श्री गंगा जी की यात्रा की है, जिदा महान पुण्य गुरबाणी और शास्त्र ने लिखिया है। पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के जीवन च हजे भी शांति नहीं। वापस आए ने, एक ब्रह्मचारी मिल गया, उन्होंने अपने घर ले आए ने और रात नूं प्रसादा पानी छकिया। गलबात चलदियां उस ब्रह्मचारी ने पुछ लिया, तुहाडा गुरु कौन है? तुसी दीक्षा किदे कोलों लई है? सिमरन किदे कोलों लिया? गुरु अमरदास पातशाह कहंदे ने, गुरु ते मैं कोई धारण नहीं कीता। जदों ब्रह्मचारी ने यह गल सुनी, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, वो कहंदा तेरा दर्शन करन दे नाल, तेनू मिलन दे नाल मेरे जिंदगी दा सारा कीता होया पुण्य जप तप बरत सारा कुछ नष्ट हो गया। तू ते निगुराए, तू ते बेगुराए, तेरी सारी कीती हुई साधना निष्फल है। तेनू कदे भी शांति नहीं मिल सकती, भावें तू किन्ने भी वर्त कर लै, किन्नी वारी भी गंगा दियां यात्रावां कर लै, तेनू कदे भी शांति नहीं मिल सकती। और उस ब्रह्मचारी ने उसे वेले गुरु अमरदास पातशाह दे घर नूं संग नूं त्याग दिता। साध संगत जी, कहन तो भाव इन्हां धार्मिक व्यक्ति पैर च पदम भाव बचपन दे विच ऐसी क्वालिटी लैके पैदा होए ने, पर बिना सतगुरु तो वो कोई भी क्वालिटी, वो कोई भी गुण उन्हां दे अंदर काम नहीं कर रहा, उन्हां नूं शांति सहजता नहीं दे रहा, उन्हां दे दुख दा नाश नहीं कर रहा। फिर किस तरह खोज करन लगे गुरु दी? बीबी अमरो गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी धी, इन्हां दे घर दी नूंह सी। किस तरह वो गुरु नानक पातशाह दा शब्द बोल रही है अमृत वेले, गुरु अमरदास पातशाह ने सुनिया,
सुन के मन खिंचिया गया। बीबी अमरो नूं पुछया, उन्हें आख्या गुरु नानक दी बाणी है, ये उस तख्त दे उत्ते मेरे पिता गुरु अंगद दे विराजमान ने। गुरु अमरदास पातशाह ने आख्या मैनू भी दर्शन करा, मैं सच्चा गुरु धारण करना चाहुंदा जिहदे नाल मैनू शांति मिले, शांति मिले। गुरु अमरदास पातशाह बीबी अमरो दे नाल खंडूर साहिब जाके गुरु अंगद देव पातशाह दा दर्शन कीता, गुरु धारण कीता और निताणियां दे तान, निमाणियां दे मान, न्योटियां दी ओठ, निआसरियां दे आसरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बने। फिर साध संगत जी जिन्हां दी रातां दी नींद उड़ गई सी, जिन्हां नूं चैन शांति नहीं सी मिलदी, जदों गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने महान सुख प्राप्त किया ते सारे संसार नूं दिता। साध संगत जी भाई राय सिंह अमृतसर सत्तो की गली दे विच टकसाली विद्वान सन। इस सिख दर्शन दे संप्रदाय दे सारे ग्रंथ उन्होंने उस टकसाल चो पढ़े पढ़ाए, पर हमेशा मन दे विच एक शंका बनी रहिंदी है कि गुरबाणी ते कहंदी है पूरे गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। मैनू इन्ना ज्ञान होने तो बावजूद भी, इन्ने ग्रंथ पढ़न तो बाद भी मैनू चैन क्यों नहीं, मैनू शांति क्यों नहीं। व्यक्ति दे जीवन च प्रश्न उठना चाहिए, गुरु दी मंग जीवन दे विच उठनी चाहिए है। इस संसार दे पदार्थ प्राप्त करके परिवार दे विच रह के धन दौलत संसार दी पोजीशन प्राप्त करके भी मन नूं शांति क्यों नहीं, मन नूं सहजता क्यों नहीं, मन च सरलता क्यों नहीं, मन च संतोख क्यों नहीं। अगर जिंदगी दे विच इस तरह दे प्रश्न उठदे ने, एक कमी जिंदगी दी दिखाई देंदी है, उस दिन समझ लेना सतगुरु दी जरूरत साडे हिरदे ने महसूस कीती है, महसूस कीती है। सतगुरु धारण जरूर कीता है, खिमा रखना एक परिवारवाद बनिया। साडे माता पिता इस संप्रदाय दे अनुयायी सन, अज असी भी इस संप्रदाय दे अनुयायी हाँ। माड़ी गल नहीं, इस तरह ही होना चाहिए, पर जिन्ना चिर सतगुरु दी लोड़ नहीं दिल नूं लगदी, सतगुरु दी कमी नहीं मन नूं महसूस होंदी, उन्ना चिर गुरु तत्व जिंदगी दे विच काम नहीं करेगा। साध संगत जी नहीं करेगा। चाहे जिन्नी वारी मत्था टेकीए, जिन्नी वारी मर्जी अरदास करिए, जिस तरह जिहड़ी चीज़ दी व्यक्ति नूं लोड़ लग जाती है ना, जिहड़ी चीज़ दी व्यक्ति नूं कमी महसूस होने लग जाती है, व्यक्ति उस कमी नूं पूरा करन दा यतन करदा। गुरु अमरदास नूं जदों कमी महसूस हुई, भाई राय सिंह नूं जदों कमी महसूस हुई, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह नूं जदों भाई लहणे दे रूप च कमी महसूस हुई, उदों फिर सतगुरु दी खोज शुरू हो जाती है। साध संगत जी सतगुरु दी मूर्ति जरूर बाहर है, पर वो कम साडे हिरदे दे विच बैठ के करदा। साध संगत जी सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदेव चाहम। सतगुरु हजारां मीलां ते बैठे ने, जिन्ना चिर उहदी मूर्ति दिल दे विच नहीं बनदी। मूर्ति दा मतलब उन्हां दी उपस्थिति, उन्हां दा ये एहसास कि सतगुरु मेरे अंग संग है, हमेशा मेरे नाल है। ये भाव जिन्ना चिर साडे हिरदे दे विच नहीं जागदा, उन्ना चिर गुरु दी शक्ति साडे अंदर काम नहीं करेगी। साध संगत जी किमा रखना नहीं करेगी। सांप्रदायिक अनुयायी जरूर आ सी, पर गुरु तत्व काम नहीं करदा पिया, अंदर नहीं करदा पिया। भाई राय सिंह नूं लोड़ महसूस हुई, सतगुरु चाहिए, क्योंकि शांति सतगुरु को ही मिल सकती है, प्रकाश ज्ञान सतगुरु को ही मिल सकता है। सतगुरु राम सिंह ने किस तरह बख्शिश की, इतिहास आपके सामने है। वर्तमान सतगुरु जी की एक छोटी जी कथा मैं आपके सामने रखा। मैनू किसी गुरु प्यारे ने गल दसी, इंडिया दे विच पंजाब च एक बड़ू साहब इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन दे विच उन्हां दा बहुत नाम है, और वो आध्यात्मिक विद्या भी गुरबाणी कीर्तन सिखाउंदे ने। उहदे नाल नाल बड़े बड़े ऑफिसर इंजीनियर डॉक्टर भी उन्हां दे इंस्टीट्यूट चों निकलदे ने। एक लड़का उत्थे जदों गया
ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੰਗਤ ਚੜੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੁਣਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੰਨ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣਾ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਸ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਬਣ ਗਈ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਸ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।